You tried all the questions from question 1 to 10? Yes, sir. But sir, I had a doubt in 8 and 10 number. Okay, let's look at those questions now. Just to be clear, this approach that we are doing, we are going to do it for all the chapters of maths, okay? So we are Okay, sir. solving the previous year's questions only, right? Yes, sir. Yes. Okay. Question number 8. Let's look at this question. A quadratic polynomial having sum and product of its zeros as 5 and 0 respectively. Okay. So you have to write that quadratic polynomial. Yeah. Yes, sir. Yes. Sum of zeros. Do you understand what is a zero? Yes, sir. F like fx equals to 0, the that we have the given equation to write equals to 0 that. Okay, so if we have a polynomial f of x, Yes, what sir. value of x makes this polynomial 0? That is called the zero of the polynomial. Yes. Okay, so yeah, Yes. okay. Or if it is a quadratic equation, it's same as the root of a quadratic equation. Okay, sir. Same thing we call here a zero of a polynomial. Okay, Yes. so a quadratic polynomial having sum and product of its zeros. Let's call the zeros as alpha and beta. Alpha Yes, sir. plus beta is given as 5 5. and Yes. alpha into beta is given as 0. 0. Okay. Yes. So if you know the sum of the roots and you know the product of the roots, how is the polynomial represented? Do you remember this format? The polynomial x square X square minus plus sum of minus alpha x. into beta. Okay. Alpha plus beta x. Yes. All right. Okay. I'll write in that format. Okay. So S is basically the sum and P is the product. Product. So x square minus sum of x plus product. Okay. This sum of x is the sum of roots. So I can also write it as x square minus alpha plus Alpha beta plus x plus alpha beta. Right? This is your polynomial. Yeah, that's the yes. answer. That's the answer. Simple as that. Yes, sir. Then we have to put the value of alpha plus beta and product of. Yes, which is x square minus alpha plus beta is 5 and alpha beta is 0. So x square minus 5x. That's your answer. So which option is Is this that then? no sir option? I hadn't got it. We have that. You find that out. Okay, tell me about this. 2x square minus 10x. How is this related to this? Sir, in this, the coefficient of x is x square is 2, sir. Okay, that's fine. Let's call this A and let's call this B. Okay, what is the Okay. relation between A and B? If I ask you B is equal to something multiplied by A, can you find that something? Like we multiply 2, 2 or 2A? What should I sir, write 2. here in the blank? Okay, I'm going to write 2. Okay, so what did you see? B is equal to 2 times A. Yeah, Yes. correct? Okay. Now, tell me, if A becomes 0, will B also become 0? Yes, sir. Because the 2 into 0. Very good. Okay, okay. So, if you put x equal to 0 here, this Yes. entire Yes, sir. polynomial will become 0, no? Okay, sir. Right, sir. 0 square 0 and minus 5 into 0, 0. So, what I'm saying is, if you put x equal to 0 here, you'll get this entire polynomial as 0. Or even if you put x equal to 5, you'll get the entire polynomial 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you get 0, 0, sir. no? So that means Okay. what? Means what? That means that 0 and 5 are both zeros of this polynomial. Yes, sir. I'm saying the zeros of this polynomial, of this x square minus 5x polynomial, will be same as the zeros of this polynomial. 2 times that. Yes, sir. 2x square. Yes or no? Because whenever a becomes 0, b will also become 0 at the same time. No? Yes, sir. Yes, sir. This much is okay. All right. Okay. Now,
to this. And see, any of the options here is matching with 2 times the polynomial. Option B, I think. It is Yes. correct, sir. So that, yes, option B will be correct. Got it? Yes, yeah, got it. All right. Okay, okay. Let's move on to question number 10 then. The zeros of quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are both negative, both positive, one negative, reciprocal of each other. That is what we have to find. Okay. Looking at the polynomial, what can you tell me about the sum of zeros? Let's say alpha plus beta. Alpha plus beta. What is that? Sir, alpha plus beta means minus b by a. It means, and how much will that be? Give me the value. Sir, minus 99x. Yes, minus 99. 99x. Correct? Okay. Yes. So, if this is alpha plus beta, what can you tell me about alpha beta? Sir, the c by a 127 by 1. So we Which can is write 120. Okay, good. Now, if we know that product of two numbers is positive, what can you Yes, sir. say about the sign of the two numbers? When you Sir, when you when you're multiplying two numbers, the product is positive. Okay. So, what okay, can sir. you say about the sign of the two numbers that you are multiplying? Sir, when we multiply plus on plus, we get a positive number. Okay, okay. Any other way you can get a positive number? Yes, sir, minus and minus can Very give good. us. Okay, okay. So this option is gone now. Clear? Yes, sir. Okay. So fine. This tells me that the sign of alpha and beta is the same, whatever it is, either both positive or both negative. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what about this? Look at this and tell me, when you are adding two numbers, when can you get negative number? So we know that alpha and beta have the same sign. Yeah. Yes, sir. So can they be both positive? In alpha plus beta. No, sir, one is negative because. Okay. So both cannot be positive. That we know for sure, right? Yes, Yeah. yes, Okay. sir. So this is out the window. Correct? Yes. Okay. Can both be negative to give you a negative number? Uh, sir, don't know. If you add 2 and 5, will you ever get a negative number? No, sir. No. If you add minus 2 and minus 5, can you get a negative number? Yes, sir. Yes. Okay. So possible that both are negative. Yes or no? Yes, sir. Minus and minus. Yes. Correct. Okay. Reciprocal of each other. Now, so it's either option A or option D. Now think, if one of the roots is alpha and the other root is the reciprocal of alpha, that means 1 by alpha, what would be the Yes. product of these? Sir, 1. Yes. But what do you know about the product? Sir, product 127. Sir, it is given that 127. 127. Right? It's not 1. Yes, sir. So that means it cannot be reciprocal of each other. Is that part Yes. clear? Yes. All right. Okay. So what is the answer then? Both negatives. Yes. So this type of question you understood, no, how to approach. Yes, sir. Sukriti throws a ball upwards from a rooftop. यहाँ पे है there is some person sitting here और एक बॉल ऐसे करके रूफटॉप से फेंका गया, ठीक है, हाँ. which is 8 meters high from the ground level. Rooftop is 8 meters high. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है. The ball reaches to some maximum height and then returns and hits the ground. तो ये बॉल जो है एक maximum height, let's call this h height. अब h ground से है या चलो इसको हम x मान लेते हैं ना, रूफटॉप से कितना ऊपर गया उसको x मान लेते हैं, तो टोटल हाइट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, x plus 8 हो जाएगा, हाँ. है ना? +8. ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में. The ball reaches to some maximum height and then returns and hits the ground.
Okay. If the height of the ball at time t is represented by h, then equation of its path is given by, okay, path का equation दिया है in terms of time. So h जो है ना, ये h जो है ये जनरल हाइट है, किसी भी पॉइंट पे इसको h बोल रहे हैं हम, ठीक है. हाँ हाँ तो हम अब x वेरिएबल को मिटा देंगे, वी डोंट नीड x वेरिएबल. ये किसी भी जनरल हाइट पे h ही है. या तो एट टाइम t इक्वल टू 0 हाइट क्या है? हाइट सर h प्लस 8 है. हाइट h प्लस 8 तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ना. मैं पूछ रहा हूँ कि जब अच्छा बॉल फेंका गया, जस्ट फेंका जा हाँ रहा है बॉल, उस समय बॉल की हाइट क्या है? तो h मीटर है सर. h नहीं है उस समय हाइट. बॉल कहाँ से फेंका जा रहा है? रूफ टॉप से सर. रूफ अच्छा टॉप 8 से. मीटर है सर. हाँ 8 8 मीटर है, मीटर उसका हाइट. ठीक है ना. ओके. करेक्ट करेक्ट. ओके. अब देखो, तो अब किसी भी टाइम, अब 1 सेकेंड पे बॉल कहाँ पे है, अगर ये फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सर देखो, हाइट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, h इज हाँ इक्वल टू h है. माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 8, ये है ना. हम्म, अब कोई तुमसे पूछेगा कि 0 सेकेंड पे कहाँ था बॉल, तो तुम टाइम t इक्वल टू 0 डाल देना यहाँ पे. हाँ सब तुमको, पे 0 कर देंगे. हाँ, बचेगा क्या, 0 प्लस 0 प्लस 8, 8 मीटर, 8. है ना. और ये तो हम देख के भी बता पा रहे हैं पिक्चर से कि जब फेंका गया तो 8 मीटर, ठीक है. इफ आई आस्क यू एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड बॉल कहाँ है, तो क्या करोगे? ये सर सर t सेकंड में 1 पुट कर देंगे. वेरी गुड. माइनस सो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8. यस, सो क्या मिलेगा? माइनस माइनस 2 प्लस 8 1 प्लस 8. यस. 9 मीटर्स, राइट? हाँ 9 मीटर. ठीक है. ओके. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग. ओके, ये तो बस थोड़ा सा एक एनालिसिस था, प्रॉब्लम समझ लिया हमने कि क्या है, ठीक है. हाइट किसी भी जनरल टाइम पे दिया हुआ है इतना इतना. अब देखो, टाइम t इन सेकेंड्स इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, डू यू सी दैट? एक्स एक्सिस. यस. है ना. तो टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉल कहाँ होगा? बॉल होगा इतने हाइट पे, ये रहा बॉल, हाँ ठीक है. और ये हाइट कितना है, अभी हमने निकाला 9 मीटर. 9 मीटर, 9. ठीक है. अच्छा, अब बताओ मैक्सिमम हाइट पे किस टाइम में पहुंच रहा है ये बॉल, वही पूछा है. हाँ तो सर वैसे ही करके हम लोग को 2 का वैल्यू 3 का वैल्यू 4 सेकंड पुट करना होगा टी पे. फिर टी ठीक पे है, मैक्सिमम हाइट मिला. जिस पे पूछा है, जो पूछा है वही करेंगे ना, सारे वैल्यूज क्यों पुट करने हैं, इतना मेहनत क्यों करना है. तो देखते हैं कि क्या पूछा है. क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल इज, ठीक है. बॉल मैक्सिमम हाइट, ये वाला लेंथ पूछ रहा है हमसे, मैक्सिमम हाइट इसका, यही है मैक्सिमम हाइट. तो ये बताओ कैसे निकालोगे? सर टी सेकंड में हम लोग का पुट कर देंगे 2 का वैल्यू. वेरी 2 गुड, सेकंड पुट कर देंगे. वेरी गुड. बस वो करके निकालो, बताओ कितना आ रहा है आंसर. 8 मीटर आ रहा है सर. 8 मीटर तो हो गया, वही आंसर है, और क्या. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ इज, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कि क्यूबिक है? सर उसका डिग्री 2 है क्योंकि इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हाँ, ये जो पैराबोला जैसा दिख रहा है ना, ये शेप को पैराबोला बोलते हैं ना, ये तो पता है. हाँ पैराबोला ये सर. हाँ, पैराबोला. चलिए. हाँ, ये पैराबोला उल्टा पैराबोला है ना. ऐसे पैराबोला गोइंग अप, देयर इज वन पैराबोला लाइक दिस, अदर पैराबोला इज लाइक दिस, बट इट्स अ पैराबोला, राइट. पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दिखाता है. एनीवे, डिग्री 2 then it's a quadratic polynomial. यस. I hope you understand what is degree of a polynomial. यस सर. यस सर. यस. Okay. Sir, I didn't understand the constant polynomial. You can give me an example of Huh. constant. Okay. A constant polynomial is just a number. Yes.
like 5. This is a constant polynomial. अभी इसको प्लॉट कैसे करेंगे ये पूछ रहे हो? नहीं सर, मतलब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का बस मीनिंग पूछ रहे थे कि कैसा, मतलब अगर आएगा तो नंबर कैसे लिखेंगे। ये सर। यही है, ठीक है। एनी नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। ठीक है। लिनियर पॉली अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? डिग्री से 0 होगा। वेरी गुड। क्या, क्यों? क्योंकि 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x⁻0, हाँ, है 5 ना? वेरिएबल। हाँ, ठीक है। अच्छा, 5x ये क्या है? ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? 5x लीनियर पॉलिनॉमियल है। यस। और इसका डिग्री क्या है? 1 है सर। यस, क्योंकि 5x⁻1, तो डिग्री 1। 5x² ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है सर, क्योंकि डिग्री 2 है। डिग्री 2 है, ठीक है। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, ये तो देख ही लिया हमने, 2 मिनट्स था। 2 मिनट है। सॉरी, 2 मिनट है या सेकेंड है? देखो ध्यान से, 2 मिनट है या सेकेंड सर है? सेकंड होगा क्योंकि टाइम सेकंड में लिया ना सर। वेरी गुड, यस। 2 मिनट्स नहीं, 2 सेकेंड्स होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना हमें, ठीक ठीक है। है। देखते हैं और क्या है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। अच्छा, ग्राफ तो मिसिंग है यहाँ पे, दूसरा वाला देख लेते हैं। ये ऐसा रहा, क्वेश्चन नंबर 70। हाँ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिया है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है बताओ? सर 3 है। 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा है ना? काट रहा। हाँ सर। अच्छा, ये कैसा पॉलिनोमियल है? किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये सर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तो डिग्री कितना हुआ? 3। 3। वेरी गुड, ओके। अच्छा, ये बताओ कि अगर मैं तुमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दूं, तो क्या उसके पास हमेशा 3 जीरोस होगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, हाँ सर 3 होगा। हमेशा? सर क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल एग्जाम में आ रहा नहीं है, इसलिए टीचर लोग मतलब बता ही नहीं ऐसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। हमेशा? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। इसके कितने जीरोस हैं? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना? ये तो नहीं है सर, क्योंकि इसका डिग्री 0 है। इसका क्योंकि डिग्री सर ऐसे 0 नहीं है। टच टच हाँ, इस टच तो नहीं कर रहा, इसीलिए तो दिया है मैंने। बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 0 नहीं है। कोई भी पैराबोला है ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हैं तो कैसा दिखता है? सर प्लॉट करते तो किस शेप का होता है? सर zigzag टाइप का रहता है, वेवलेंथ जैसे होता है ना सर, जब 2 जीरोस को काटता है। ऐसे? हाँ सर वैसे ही। ऐसे मतलब नहीं एक होता। सर रहेगा खाली। कैसे? तुम ड्रॉ करके दिखा सकते हो? हाँ सर, लाइक दिस। ये एक सेकेंड। अच्छा, वो खत्म हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल? कैसे सर? ये गलत है। व्हाट यू हैव ड्रॉन इज दिस राइट? यस सर। ये इस तरफ बढ़ता है, समझे? ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाता है। हाँ ओके, तो ऐसा शेप है हाँ है ना? ठीक है। हाँ। तो ये एक पैराबोला का शेप है, दिस यू नो, यस ठीक है। यस। अब और पैराबोला क्या दिखाता है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिखाता है ना? हाँ अब मैं इस पैराबोला को उठा के, इसको उठा के यहाँ कर दूं, तो क्या इसका डिग्री चेंज हो जाएगा? डिग्री तो सर, लेकिन सर एक्स एक्सिस से अगर हट जाता है तो उसका डिग्री तो अलग हो जाता है, डिग्री नहीं अलग क्योंकि वो होता, कट नहीं कर रहा। उसका डिग्री अलग नहीं होता। डिग्री शेप डिसाइड करता है।
अच्छा, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ और तुम उसको प्लॉट करो अभी, ठीक है? हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है सर। क्वाड्रेटिक। इसको फटाफट प्लॉट करो कॉपी पे। कर लेंगे। दिखाओ। शो। बढ़िया। ये कट कर रहा है कहीं पे एक्स एक्सिस को? लेकिन सर ये भी तो कट नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस में 2 है तो उसी में कट कर रहा है। हाँ, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या ये? नहीं सर। नहीं ना। तो फिर इसका डिग्री क्या हो गया तुम्हारे हिसाब से? सर 2 ही होगा क्योंकि वाई एक्सिस में 2 है। वाई एक्सिस में 2 है मतलब? मतलब सर डिग्री 2 था इसलिए वाई एक्सिस पे उसको प्लॉट किए थे हम। एक्स स्क्वायर 2 था ना उसका डिग्री। हाँ, तो वही तो हम समझा रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि टच करे चाहे ना करे डिग्री उसका नहीं बदलता है। हाँ सर, अब समझ आ गया क्योंकि सर उसको टच नहीं करा फिर भी डिग्री टू 2 है। है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो डिग्री नहीं बदलता है उसका। क्या बदलता है? नंबर ऑफ एक। जीरोस। अच्छा। नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि एक। शेप वही रहता है, शेप तो वही है ना, पैराबोला है वो भी। ठीक है, क्या बदलता है कि इसके कितने जीरोस हैं। तो अगर कोई पैराबोला ऐसा है, ऐसा, तो इसके दो जीरोस हैं, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है? अगर कोई पैराबोला, मान लो इसको उठा के यहाँ कर दिया, या हाँ। इसको ना ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया, हाँ तो इसके कितने जीरोस हैं? सर 2 ही है क्योंकि एक बार टच करके फिर वो निकल जा रहा है एक बार में दूसरे बार में। टू नहीं है, अब एक है ना, क्योंकि एक ही तो वैल्यू मिलेगा तुमको यहाँ पे, दो थोड़ी वैल्यू मिलेगा। हाँ वही एक बार सर कर रहा। हाँ, तो अब इसका ये वाला हो गया वैल्यू, एक रूट हो गया। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो, नहीं नहीं, लीनियर नहीं हुआ। अच्छा। नंबर ऑफ जीरो से तुम डिग्री नहीं डिसाइड कर सकते हो। ठीक है? हाँ। मैं बताऊंगा उस पे, ओके? या हम ये कह सकते हैं कि इसके दो रूट्स हैं लेकिन दोनों रूट्स सेम है। हाँ। ये एक तरीका हुआ कहने का, या तुम ये बोलो कि इसका एक ही रूट है। हाँ एक ही रूट। या मतलब एक वैल्यू तो एक ही मिलेगा ना यहाँ पे तुमको, हाँ एक ही मिलेगा। या एक ही जीरो। ओके, ठीक है। अब अगर यही वाला सेम इसको हम ट्रांसपोज करके कहीं पे और ले गए, मान लो यहाँ पे ले आए, ठीक है? हाँ। हाउ मेनी जीरोस नाउ? देखो, ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक का है। डिग्री क्या है? 2 है सर। टू है, ठीक है। इसके कितने जीरोस हैं? डिग्री इज टू, नंबर ऑफ जीरोस इज हाउ मच? सर नंबर ऑफ जीरो भी 2 होगा सर। क्यों टू होगा? क्योंकि सर एक्स एक्सिस पर वो दो जगह उसको कट कर रहा। बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, ओके। हम्म। सो ये भी टू हो गया, ओके। अब लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? इसका सर डिग्री 2 है सर। टू है ना? अब समझ आया क्या हाँ। बोल रहा था? हाँ। हाँ क्योंकि सर डिग्री अब 2 होगा, पैराबोला भी था सर। हाँ, तो डिग्री अगर पैराबोला है तो उसका डिग्री टू ही होगा, चाहे वो पैराबोला कहीं भी हो। यहाँ पे भी ऐसे पैराबोला बनाएंगे ना, इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा सर। टू होगा। लेकिन इन तीनों पैराबोला में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ठीक। कि पहले वाले पैराबोला जो दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं टू। 2। हाँ। दूसरा वाला पैराबोला एक ही जगह टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? वन। 1। हाँ। ये कहीं नहीं टच कर रहा है, इसका डिग्री तो टू ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस नंबर कितना हो जाएगा? 0। यस, यस, अब समझ में आया क्या बोल रहा था? हाँ। अब ठीक है, ओके। हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम बस इतना कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो टू होगा, हाँ। है ना?
वो 0 भी हो सकता है, नो जीरो, वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? ठीक है। हाँ तो अभी लेट्स कम टू क्वेश्चन 17 नाउ। हाँ, हाँ वी हैव अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं? दो जगह ऐसे मुड़ा हुआ है ना तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक जगह मुड़ा होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कहीं नहीं मुड़ेगा तो लिनियर पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर वन होगा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। ओके, नाउ अभी मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखाता हूं तुमको और तुम बताना उसके कितने रूट्स हैं और उसके कितने जीरोस हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके। पहले बताओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सर, हाँ क्यूबिक है, क्यूबिक क्योंकि है, सर ठीक दो है, जगह वैसे करवा। वेरी गुड, ओके। अब इसके कितने जीरोस हैं? सर जीरोस वन है। वेरी गुड, एक ही जगह कट कर रहा है ना? हाँ एक ही जगह। करेक्ट, ओके। अच्छा एक और यार रुको, इसी को शिफ्ट कर देता हूँ। ये बताओ अब इसके कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस हैं इसके? अब सर टू जीरोस है। 2 जीरोस, वेरी गुड, ओके। 2 जीरोस हैं, सॉरी। ये वाला और ये वाला, ओके। अब मैं इसको थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ। चलो, कितने जीरोस हैं इसके? थ्री जीरोस है। 3 जीरोस हैं, श्योर ना? हाँ श्योर। यस, करेक्ट, 3 जीरोस हैं क्योंकि 3 जगह कट कर रहा है। समझ में आया? देखो, क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस भी हो सकते हैं, 2 जीरोस भी हो सकते हैं और एक जीरो भी हो एक जीरो। सकता है। ठीक है, क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के नो जीरोस हो सकते, मतलब जीरो जीरोस हो सकते हैं? जीरो जीरोस नहीं सर, एक जगह तो उसको कट करना ही पड़ेगा तभी करना ही जाके वो पड़ेगा, क्यूबिक। बिल्कुल सही। ओके, ठीक है, चलो, अब समझ आ गया तुमको, है ना? तो जब ऐसे ग्राफ्स वाले आएंगे तो यू कैन डू दैट। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 20। Alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, then the value of k if alpha plus beta and ये रिलेशन दिया हुआ है। हाँ अ, ठीक है, कर पाओगे इसको सॉल्व? हाँ सर, एक को ट्राई करते हैं। अच्छा, तुम हमको अप्रोच बताओ पहले, ट्राई तो कर लेना, मतलब करोगे तो निकल ही आएगा। क्या करोगे? पहले सर पहले सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है कोएफिशिएंट वाला। तो उससे हम वैल्यू माइनस बी और ए का ले लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो उसका वो इक्वेशन से हम लोग ले लेंगे उससे। उसके बढ़िया, बाद बस जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा पे पुट कर देंगे इज बस इक्वल टू वन। हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम कर लोगे, तुम बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। हाँ अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वैल्यू पूछा है कि भाई -2 पे क्या होगा, ये तो बहुत आसान सवाल है ना? माइनस। हाँ माइनस टू पुट करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ देखते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन अब। अच्छा, ये वाला 24 भी देख लेते हैं एक बार। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा? ये कैसे करोगे, बस बता दो हमको। सर पहले उसको अगर इक्वेट होगा तो वो वाला इक्वेट कर देंगे वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा को। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में क्या मिलेगा न्यूमरेटर में सर अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में? अल्फा इंटू बीटा। ओके, और ये वैल्यूज बस, ठीक है, हो गया। चलो, ये तुम निकाल लोगे, ओके। If one question number 25, if one zero of the polynomial is this, अच्छा, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि एक जीरो, लेट्स कॉल इट अल्फा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो। सो 2 जीरोस अगर बोलेंगे तो एक वन बाय जीरो, अल्फा। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, निकल जाएगा। सर ये ले थोड़ा डाउट है निकलेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। इसको बता दीजिएगा सर। एक अल्फा है, दूसरा 1 बाय अल्फा है, ये दोनों जीरोस हैं। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू वन बाय अल्फा। विच इज, वन। यस, प्रोडक्ट हो गया 1, ठीक है। हाँ
अब इक्वेशन देखो और इक्वेशन से बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। इक्वेशन से सर -k-2 डिवाइडेड बाय 6 है। बस हो तो गया। हाँ प्रोडक्ट निकल गया उससे। हाँ हाँ, और वो प्रोडक्ट है 1 तो उसको इक्वेट कर दो 1 से, के का वैल्यू निकाल लो। हाँ पुट कर देंगे तो। हाँ हो गया ना? ठीक है। हाँ अच्छा, 26 वाला देखते हैं। Find the value of k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to half of their product. वैसा ही सवाल है, एक बार ये वाला ट्राई हाँ करो। चलो, हो जाएगा या नहीं होगा बताओ। वही सर, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब समझ नहीं आया। अभी यहाँ पे किया था ना ये वाला, हाँ सर, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वैसे ही होगा सर। ये ऐसा ही सवाल है, वही सवाल को वर्ड में लिख दिया है। देखो, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सेम है सर, सेम है। है ना? वैल्यूज भी सेम है क्या? k प्लस 6 हाँ, इनफैक्ट नंबर्स वो भी सेम है। हाँ सेम है। ठीक है, ठीक है, आई मीन इट्स द सेम थिंग। ओके, हम्म, 27 alpha and beta are the zeros of the polynomial. इसमें भी तो सर वही करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे। बस, हाँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब तुमको अल्फा बीटा का वैल्यू पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता ही है, तो सब पुट करो, इसका वैल्यू निकाल लो। हाँ निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial this. तो फर्स्ट, हाँ ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन, इजी है, बहुत इजी है। बताओ कैसे करोगे, सोचो थोड़ा, फिर हमको बताओ। जीरोस रेसिप्रोकल है तो सर तुमको एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है। अच्छा ठीक है, तो मान लो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो तुमको एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस हैं 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। क्वेश्चन समझा? हाँ हाँ, रेसिप्रोकल मतलब समझ गया सर, वन ठीक बाय है, अल्फा। ठीक है, अब सोचो कैसे करोगे। क्वेश्चन 28 और 29 दोनों सेम है, मतलब सिमिलर है। ठीक है, तो यू कैन ट्राई क्वेश्चन 29 क्योंकि इसमें वैल्यूज हैं, तो 29 हाँ वैल्यू पुट कर। ठीक है, तो 29 ट्राई करो। यस अल्फा। लेकिन सर वो वाला इक्वेट कैसे करेंगे सर, 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा को? क्योंकि सर हम लोग को तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ना वैल्यू मिलेगा। हाँ, वहीं से तुमको हिंट भी मिलेगा। जब तुमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, तो तुम 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकता है? 1/, अच्छा रेसिप्रोकल कर देंगे तो सर, नहीं जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं हो। नहीं, देखो इसका वैल्यू कुछ भी है, मान लो 10 है, इसका वैल्यू है 12, ठीक है। हाँ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये क्या होगा? अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, हाँ, अल्फा प्लस बीटा और तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा जो कि न्यू रूट्स हैं, नए वाले के रूट्स हैं जो, और नए वाले के जो हाँ जीरोस हैं, नए वाले पॉलिनोमियल के, उसका सम तो तुम निकाल लोगे ना, 10 बाय 12। हाँ सर हाँ हमको पता है कि रूट्स ये हैं, ये दोनों रूट्स हैं, तो पहले फाइंड करेंगे व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू रूट्स, देन विल फाइंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अगर ये दोनों पता चल गया तो फिर तो हम लिख देंगे ना नया पॉलिनोमियल। हाँ, तो पुट कर देंगे वैल्यू में तो हो हाँ, जाएगा उसके। तो अब समझा क्या अप्रोच हम कर रहे थे? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 एक बार करो, मेरे सामने करो। अच्छा सर, उसमें से एक को अल्फा एंड बीटा ले लेंगे और दूसरे जो रेसिप्रोकल वाला को 1/अल्फा एंड 1/बीटा ले लेंगे ना। तुम सम ऑफ रूट्स निकालो पहले, सम ऑफ न्यू रूट एंड देन प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट।
सर एक सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, और एक प्रोडक्ट है 1/अल्फा इंटू बीटा। वेरी गुड, ओके, ठीक है। अब ये दोनों चीजें तुमको पता ही है कि नहीं? ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है, क्या ये तुमको पता नहीं है पहला इक्वेशन देख के? हाँ, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला ना सर? हाँ, हाँ, उसमें से ये हो जाएगा माइनस बी ठीक बाई है, ए। तो ये सब वैल्यू डालो उसमें और निकालो कितना है ए बी सी के टर्म्स में। सर उसमें पुट कैसे करेंगे, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अच्छा बताओ, सम ऑफ रूट्स तुम क्या निकाले? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स तुम्हारा आया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, अल्फा इंटू ये आया ना? अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, हाँ, लिख सकते। अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है? सी बाई ए। सी बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो ए कट जाएगा ना सर? तो माइनस बी बाई सी हो गया। हाँ ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा ये तुम अपने से निकालो। रूट्स नहीं, जीरोस की बात करें। रूट आई मीन सेम थिंग है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो बोलेंगे, ठीक है? ठीक। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बताओ? हम्म, सर ए बाई सी आएगा। ठीक है, ए बाई सी, ओके। हाँ अब तुमको सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हो और पॉलिनोमियल लिख सकते हो फिर। हाँ सर, अल्फा वो वाला जो सर फॉर्म है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ यही होता है ना? हाँ सर, एक्स स्क्वायर। सर जो बी बाई सी के साथ जो एक्स अटैच है उसको अटैच रखना है ना सर? वो हाँ, क्योंकि ये होता है ना फॉर्मेट, देखो पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो ये है मेरा सम, हाँ तो ऑफ एक्स तो रखना ही होगा, है ना? हाँ, रखना होगा, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको तुम अलग फॉर्मेट सी मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, वो भी कर सकते हो। सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये भी करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, सेम थिंग। अच्छा, प्रोडक्ट भी कर सकते, ठीक। ठीक है, हम्म ओके। विद दिस एक बार तुम अपने से जो जो क्वेश्चन नहीं ट्राई किए वो तुम ट्राई करना, ठीक है? हाँ